اور سہیب بھرت ہیں, شافع ہیں, تمام ہمارے جو منسٹرز ہیں انہوں نے اس وقت فزیکلی بھی فیلڈ میں جا کے بہت محنت سے کام کیا ہے, تمام ڈویژنز کا وزٹ کیا ہے, اسپیشل برانچ ہے, سی ٹی ڈی ہے, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے, اور ہمارا جو سیف سٹی ڈپارٹمنٹ ہے. آئی تھنک سب نے ایک انتہائی جو کہتے ہیں محنت سے اور بہت ڈاؤن ٹو دا مائنیوٹسٹ لیول جس طرح سے کام کیا ہے, ان ڈیپتھ کام کیا ہے, ڈیلیجنٹلی کام کیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب شاباش کے مستحق ہیں. اور میں جو ہماری فیلڈ فارمیشنز ہیں, چیف سیکرٹری صاحب جو ہیڈ کر رہے ہیں اس کو, اور تمام جو ہمارے ڈویژنز کے کمشنرز ہیں, ڈیپٹی کمشنرز ہیں ہمارے ڈسٹرکٹس کے, اور اسی طرح آر پی اوز ہیں, ڈی پی اوز ہیں. اب یہ ہماری فیلڈ فارمیشنز کا کام ہے کہ جو اتنی محنت سے, اتنی ڈیلیجنٹلی تمام ڈپارٹمنٹس نے ایک بہت ہی اچھا بلو پرنٹ تیار کیا ہے. اور پہلی دفعہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی سپرفیشلی کام نہیں ہو رہا, بہت جینوئنلی ایک ایک چیز کو دیکھا جا رہا ہے. جینوئنلی جو سیکیورٹی ہے اور سیفٹی ہے, ویل بینگ ہے سٹیزنز کی, اس کو نہ صرف دیکھا جا رہا ہے بلکہ مانیٹر کیا جا رہا ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی. میں سب کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ ایک نیا لیول اچیو کیا پنجاب گورنمنٹ نے, اور بڑی خوشی کی بات ہے. میں نے دیکھی ہیں جو ایک بیٹن میٹنگز ہوتی ہیں, ایک طریقہ کار ہے, بس ایک میٹنگ کی ختم کیا, لیکن مجھے بہت خوشی ہے میرے ڈپارٹمنٹس نے بہت اچھی طرح اس میں اپنا رول پلے کیا ہے. اور میں سیکرٹری ہوم کو, منسٹر ہوم کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے لیڈ کیا ہے. تو اب یہ جو محنت ہوئی ہے فیلڈ فارمیشنز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس محنت کو جو ہے وہ انجام تک پہنچاتے ہیں اور اسی بہترین طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. کر بھی رہے ہیں, جیسے ابھی منسٹرز نے یہ بات کہی ہے کہ جس طرح سے کمشنرز, ڈیپٹی کمشنرز, آر پی اوز, ڈی پی اوز آن ٹوز تھے. تو آئی تھنک یہ محرم, صرف محرم نہیں, ابھی اس سے پہلے جو عید کے ارینجمنٹس تھے اور جو قربانی کے ارینجمنٹس تھے, کہیں کسی کو کوئی آلائش نظر نہیں آئی, کسی کو کوئی ریمینز اینیملز کے نظر نہیں آئے, کوئی گند نظر نہیں آیا, کوئی وہ انبار نظر نہیں آئے, اور خون کے دریا بہتے ہوئے نظر نہیں آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عید کی نماز کے لیے جو عید گاہیں تھیں, جو مساجد تھیں, ان کی جو صفائی تھی, ان کے اوپر جو پورا وہ خوشبو کا چھڑکاؤ کیا گیا, اور جس طرح قربانی کے بعد پورا صفائی کا آپریشن ہوا, اس کے لیے میں جو ہمارے منسٹر ہیں لوکل گورنمنٹ کے, ذیشان رفیق, اور جو ہمارے سیکرٹری ہیں, ان کو میں دونوں کو اس چیز پہ اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. تمام جو ہماری ستھرا پنجاب کی جو فیلڈ فارمیشنز ہیں ان کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں. لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کہیں بھی آ کے ہمیں جو ہے وہ کوئی سیچوریشن پوائنٹ نہیں آنا چاہیے, کہیں ہمیں یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ بہت اچھا کر لیا بس اب اسی کو. ہمیں وی شوڈ بی اسٹرائیونگ فار ایکسلنس ایوری ڈے, اور ہر روز ہمارے اس پہ, پچھلا عید سے یہ والی عید بہتر تھی, پچھلے محرم سے ان ٹرمز آف سیکیورٹی ارینجمنٹس, ان ٹرمز آف کوآرڈینیشن, ان ٹرمز آف فیسیلیٹیشن, ہمارا یہ والا جو اب محرم آ رہا ہے کل سے انشاءاللہ, اس کو اور بہتر ہونا چاہیے. بس صرف بہترین نہیں بلکہ بہترین ہونا چاہیے. اور جو گزشتہ سارے ارینجمنٹس تھے ان کو سرپاس کرنا چاہیے, ہمیں آگے نکلنا چاہیے اس سے. جو کرٹیکل ایریاز ہیں جو ریڈ میں مارک کیے ہوئے ہیں, جن کی نشاندہی ابھی آئی جی صاحب نے کی, ان کرٹیکل ایریاز میں جو ہیٹ میپس ہیں جہاں پر آپ کے پاس, ان کے اندر آج سے اسپیشل سرویلنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں پر اگر آپ کو ایکسٹرا فورس ڈپلوائے کرنی پڑتی ہے, وہاں پر اگر آپ کو ٹیکنالوجی ایکسٹرا ڈپلوائے کرنی پڑتی ہے, حالانکہ بڑی اچھی ابھی پریزنٹیشن دی ہے ایس این یونس صاحب نے کہ ایک ایک جو جلوس ہے, ایک ایک مجلس جو ہے وہ سی سی ٹی وی مانیٹرڈ ہے, اور اس میں جو ہمارے اہل تشیع کے علماء حضرات ہیں, اوپینین لیڈرز ہیں, وہ ہماری بڑی مدد بھی کر رہے ہیں اور بہت کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں, ان کے میں شکر گزار ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ اس دفعہ جو ایران پہ جو مشکل وقت آیا ہوا ہے, جو جنگ ہو رہی ہے, اس میں ایک تو مذہبی جو جذبات ہیں وہ
सबके बहुत इस वक्त हर्ट हुए हैं सब, तो मेरी तो सबसे यही गुजारिश होगी कि अपने मुल्क में जो है वो हम बेहतरीन अमन व अमान को कायम करें, स्पेशली इस मुहर्रम में। और जो हमारे अज़ादार हैं, जो हमारे मजालिस के अरकान हैं, जो हमारे अहले तशरीह की जितनी भी एक्टिविटीज़ मुहर्रम में हो रही हैं, उसमें हम ना सिर्फ उनको फैसिलिटेट करें बल्कि उनको ये एहसास दिलाएं कि हम उनके साथ खड़े हैं। बहुत गर्मी का मौसम है, सख्त गर्मी है और हीट वेव आई हुई है पंजाब में, तो तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुहर्रम में फील्ड में रहना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि तमाम जो रास्ते हैं, जो रूट्स हैं, जो जुलूस होंगे, उन तमाम रूट्स पे ना सिर्फ ये कि ठंडे पानी की कदम कदम पे सबीलें होनी चाहिए, शरबत की सबीलें होनी चाहिए, बल्कि उनके जो रूट्स हैं उन पे पानी का छिड़काव होना चाहिए। रूट्स के ऊपर साइनेज लगी होनी चाहिए ताकि लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो देखने में कि जो रूट है वो कौन सा है और कहाँ जाता है। और रूट के रास्ते से जितनी भी अगर कोई डेब्री पड़ी है, कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा है, तो उसको क्लियर करना, जो रास्ते की रुकावटें हैं उनको दूर करना। और अगर कोई खुले मैन होल्स हैं या कोई खुले कोई सूएज होल्स हैं, उन सब को आज ही कवर करना। मैं डिप्टी कमिश्नर्स अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी वार्न कर दें कि मुझे कहीं कोई खुला मैन होल, कोई खुला सूएज होल, मुझे ड्रेनेज कोई कहीं नजर ना आए। और मैं ये उम्मीद रखती हूँ, मैं बहुत जल्द इसकी मीटिंग करूंगी कि आपने जो नेट लगानी थी सूएज होल्स के अंदर, वो आपने अपना पूरा काम जो है वो डिलीजेंटली किया है। वो मैं इसके ऊपर बहुत जल्दी एक मीटिंग भी करूंगी। तो जो रूट्स हैं उनका मैंने आपको बता दिया है, क्रिटिकल एरियाज का बता दिया है। रूट्स के ऊपर हमारे जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट, हमारे जो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट, रेस्क्यू 1122 की पूरी डिप्लॉयमेंट। और जो ये मैं दोबारा कहूंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा है, बहुत तेज गर्मी है, सख्त गर्मी है, तो इसमें जो ठंडे पानी की सबीलें हैं, शरबत की सबीलें हुकूमत पंजाब की तरफ से फ्री, वो हमें हर जगह इंश्योर करनी है। लेकिन कैंप्स जो भी आप लगा रहे हैं, चाहे आपके इंफॉर्मेशन के लिए कैंप सेटअप किए हुए हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के लिए कैंप सेटअप किए हुए हैं, या वो पानी की सबीलें हैं, उनका एक ही पैटर्न होना चाहिए, एक ही उनका डिजाइन होना चाहिए, तो ताकि लोगों को पता चले कि ये हुकूमत के सेटअप करदा कैंप्स हैं और इनके अंदर वो जाके जो भी उनको चीज दरकार है वो उनको मिल रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जंग की वजह से या जो ईरान में जुल्म हुआ है उसकी वजह से मजहबी जो जज्बात हैं वो जाहिर है हम सब के भी मजरू हैं, तमाम मुसलमान जो हैं वो इस वक्त जो है वो तकलीफ में भी हैं। ऐसे में हाई हैंडेडनेस का मुजाहरा करना ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, कोई अच्छी रिवायत नहीं होगी। तो मेरी सख्ती से पूरे पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन है कि क्रिमिनल्स में और आम आवाम में फर्क करना जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। एक क्रिमिनल्स को डील करने का एक अलग तरीका कार है, उसमें मैं कोई रियायत देने के हक में नहीं हूँ, लेकिन जो आम आवाम है, छोटी छोटी जो चीजें हैं उसमें लोगों को एहतराम के साथ उनके साथ अच्छा सलूक करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और क्योंकि हमारा मजहब भी यही सिखाता है कि तमाम मजाहिब और तमाम जो अकायद हैं, जो तमाम मसालिक के लोग हैं, सबकी रिस्पेक्ट करना, सबको इज्जत देना, सबको एहतराम देना हमारी जिम्मेदारी है। तो देयर शुड बी नो हाई हैंडेडनेस आम आवाम के साथ या जो शुरका हैं उनके साथ, और उनको फैसिलिटेट करना, उनकी छोटी छोटी जो कंप्लेंट्स हैं उनको सुनना, उनको रिजॉल्व करना, ये भी आप सबकी जिम्मेदारी है। और जो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो रूट्स हैं उनको क्लियर करना, उनको ठंडे पानी का छिड़काव करना, और आई थिंक मैं अभी बात करती हूँ अपनी टीम के साथ कि किस तरह जब जुलूस सुबह के वक्त में, दोपहर के वक्त में या शाम के वक्त में जा रहे हैं, जब टेम्परेचर बहुत सोर कर जाते हैं, तो उस वक्त हम किस तरह से ठंडे पानी का छिड़काव कर सकते हैं जुलूस के ऊपर ताकि उनको गर्मी का एहसास जो है वो कम हो। वो मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठ के करती हूँ और वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला तमाम डीसीज को और जो हमारे कमिश्नर्स हैं उनको हम ये कन्वे कर देंगे। जो सिक्योरिटी है,
आपने मुझे ये, मैंने देखा अभी कि आपने 3 tiered सिक्योरिटी लेयर्स आपने बनाए हैं. होल्डिंग पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, मल्टीपल चेकिंग पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं. आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में किस तरह एक आदमी चादर में वो अपने आप को लपेट के, और वो खुदकुश हमला आवर था जो मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ था, और उसमें बहुत सारी शहादतें हो गई थी. तो मल्टी टीयर्ड सिक्योरिटी लेयर्स में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई जो हजूम है उस तक पहुंच ही ना पाए. और तमाम आरपीओज और डीपीओज को मैं ये अभी इस वक्त कह रही हूँ, तमाम इंटेल एजेंसीज को भी, कि वो जो हमने पहले बात की थी कि वो एक साइंस होते हैं कि जब जाहिर है खुदकुश हमला आवर है, उसने कोई बल्कि गारमेंट पहना होगा, उसने कोई अपने आप को छुपाया होगा. तो इतने गर्मी के मौसम में अगर कोई चादर पहन के जा रहा है, या अगर कोई ऐसा गारमेंट पहन के जा रहा है जिसमें वो बल्कि भी लग रहा है और आपको लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है, वो उसके क्लियर साइंस होते हैं, क्लियर इंडिकेशंस होती हैं. तो प्लीज अपनी फील्ड फॉर्मेशंस को बिल्कुल हाई अलर्ट पे रखें कि ऐसा कोई भी अनॉमली अगर वो डिटेक्ट करते हैं, कोई अनॉमली, कोई ऐसी चीज वो देखते हैं, तो उसको देयर एंड देन उसके साथ डील करें. स्पेशली ये जो मैंने बल्कि गारमेंट्स का आपको बताया, इस गर्मी के मौसम में कोई जैकेट नहीं पहनता, इस गर्मी के मौसम में कोई चादर नहीं लेता, इस गर्मी के मौसम में कोई एडिशनल लेयर ऑफ क्लोथिंग नहीं होती किसी की. तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी, और वहीं पे उसके साथ जो है वो डील करना. बहुत अच्छा किया जो सेफ सिटी ने. एहसन, आपको शाबाश. आपने QR कोडेड जो पैनिक बटन्स हैं वो आपने ना सिर्फ ये कि वो आपने पूरा एक डिज़ाइन किया, बल्कि आपने इंश्योर किया कि वो जो जलूस हैं उन सब के जो, या वो जो मजालिस हैं, उन्होंने उसको डाउनलोड किया हो. और वो सिर्फ मैं तमाम जो हमारे इस वक्त अहले तशी भाई हैं, बहन हैं, जो मजालिस में शरीक होंगे या जो जलूस में शरीक होंगे, मैं उन सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो ये जो QR कोड है उसको डाउनलोड करें, और उसको जो है वो पैनिक बटन, उसका खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी तो उसको इस्तेमाल करें, ताकि उसके साथ हमने अपना पूरा सिक्योरिटी एपरेटस जो है, ये जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको हमने लिंक किया हुआ है. और आप एक दफा वो पैनिक बटन जो दबाएंगे तो हमारा 1.5 का जो सिस्टम है वो पूरा ऑपरेट हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, और जहां भी आपको जिस किस्म की मदद की भी जरूरत होगी वो आपकी मदद को आएगा इंशाअल्लाह ताला. तो ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम हमारी जो पंजाब की मसाजिद हैं, चाहे वो किसी भी मसलिक से, वो हमारे साथ इस वक्त रजिस्टर्ड हैं. तमाम जो इमाम हजरात हैं वो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, उनको एजाज़िया भी दिया जा रहा है. तो अब मेरी उन तमाम जो इमाम हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो मसाजिद हैं उनमें ऐलानात करें कि मुहर्रमुल हराम को पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाए, और जो इसको मनाने वाले हैं, जो मजालिस में शरीक होंगे, जुलूस में शरीक होंगे, उनकी फैसिलिटेशन आम आवाम का भी फ़र्ज़ है, उनको पूरे एहतराम के साथ फैसिलिटेट करें, और कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना होने दें. किसी को भी कोई अगर आपको ऐसा नज़र आता है कि मशकूक कोई फ़र्द या कोई मशकूक हरकत आपको नज़र आती है, तो उसको फ़ौरन पुलिस को रिपोर्ट करें. सिविल डिफेंस को आपने, मैंने देखा सिविल डिफेंस को भी आपने रखा हुआ है. सिविल डिफेंस को पूरा अपने साथ इंगेज रखें, उनको अपने साथ जो फील्ड फॉर्मेशंस में शामिल करें. अगले 3 दिन मॉक एक्सरसाइजेज होनी चाहिए 9th और 10th मुहर्रम के लिए, और वो मॉक एक्सरसाइजेज की तमाम तस्वीर, वीडियोस जो है वो मुझे भेजें. उसमें आप तमाम डिपार्टमेंट्स को शामिल करें, ताकि हमारे पास पूरे SOPs जो हैं वो डिफाइंड हों, रिहर्स्ड हों, ताकि इन केस ऑफ एनी अनटूवर्ड सिचुएशन, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, वी आर ऑल रेडी अल्हम्दुलिल्लाह. कंट्रोल रूम्स को आपने हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश किया है, वेरी गुड. उसका जो हेड क्वार्टर है वो हमारी होम मिनिस्ट्री है. तो मैं सेक्रेटरी होम से ये कहूँगी कि प्लीज़ इंश्योर कि तमाम जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं वो ना सिर्फ फंक्शनल हो बल्कि वेल इक्विप्ड हों, और उनको तमाम उसके जो फीचर्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा हो, ताकि जो
किसी भी सिचुएशन के साथ डील करने का हमारे पास पूरा पैराफर्नीलिया मौजूद हो। आपने कहा कि ड्रोन्स के उड़ाने पे पाबंदी है, तो हम अपने ड्रोन्स जो है वो उड़ाएंगे जो हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारा डेजिग्नेटेड हैं। उसमें किस तरह से डिफ्रेंशिएट होगा वो जो हमारी फील्ड फॉर्मेशंस हैं, स्पेशल ब्रांच है, हमारी आईजी पुलिस हैं, होम डिपार्टमेंट है, इनको पूरा एसओपीज जो है वो डिफाइन करने चाहिए और हमें पूरा जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे जितने भी सेफ सिटी के कैमराज हैं, जहाँ पे हमारी तकरीबन हर शहर में हमारी 70, 80, 90% कवरेज है, जहाँ पे सेफ सिटी के कैमराज की कवरेज नहीं है वहाँ पर हमें जो प्राइवेट कैमराज हैं उनके साथ अपने सेफ सिटी के कैमराज को लिंक करना चाहिए ताकि हर चीज जो है वो सीसीटीवी मॉनिटर्ड हो और रियल टाइम जो है वो इंटरवेंशन हो सके मुमकिन। लाउड स्पीकर्स को लाउड स्पीकर की वायलेशन की बिल्कुल इजाजत नहीं है। अभी भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे रात को जोर जोर से लाउड स्पीकर की वायलेशन हो रही होती है और लोगों के आराम में खलल आता है। तो दोबारा से प्लीज इसको जो है वो सीरियसली इसको फॉलो अप करें इसके ऊपर और इसको इम्प्लीमेंट करें। कोबिंग ऑपरेशंस हमारे जारी रहने चाहिए। कोबिंग ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसी से आपको जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है। जो रियल टाइम इंटेल शेयरिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एक दूसरे के साथ, पहले आपकी माशाल्लाह अच्छी कोऑर्डिनेशन है, लेकिन जो आपकी इंटेलिजेंस शेयरिंग है एक दूसरे के साथ और आपकी जो कोऑर्डिनेशन है वही अवर्ट कर सकती है किसी अनटूवर्ड सिचुएशन को। तो आई होप मैंने तमाम चीजें जो है वो कवर कर ली हैं। जो फिर मैं दोबारा कहूंगी कि गर्मी का मौसम है तो लोगों का ख्याल रखना और जहां पर भी मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, रेस्क्यू 1122 की जरूरत है और फायर जो एक्सटिंग्विशर्स, पूरी हर चीज आपकी लाइंड अप होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके बाद में या खुदा न खास्ता किसी भी चीज के लिए देर हो जाए। जितने भी रूट्स के ऊपर होटल्स हैं, सराय हैं, इस तरह की जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनकी पहले ही मॉनिटरिंग पूरी होनी चाहिए। ओपन मैन होल्स कोई नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स उनकी मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। कोई हैंगिंग वायर्स नहीं होनी चाहिए प्रोसेशंस के रास्ते में ताकि कोई जो सिचुएशन ऐसी ना हो। सबसे मेरी गुजारिश है कि जो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है, हेट मटेरियल है, उसकी रोकथाम के लिए जो हमारे फायर ब्रांड स्पीकर्स हैं उनके ऊपर एक पूरी नजर रखना, क्लोज विजिल रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे नॉन एजिटेटर्स हैं, नॉन जो हमारे वायलेटर्स हैं, उनको चेक में रखना ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और पंजाब के अवाम को बिल्कुल इस चीज को खुद भी एक नेशन की तरह हमें इस चीज को रोकना है। हेट मटेरियल जो है वो इट लीड्स टू अनरेस्ट, इट लीड्स टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो उसको टाइमली जो है वो उसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। अज़मा, आप पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो आप माशाल्लाह मैंने देखा आपके अच्छे अरेंजमेंट्स हैं और आपकी अच्छी हुई हुई है, लेकिन इसको कंटिन्यूस बेसिस पे करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, ताकि लोगों को कम से कम तकलीफ का, कम से कम जहमत का सामना करना पड़े और बल्कि ना करना पड़े तो बेहतर है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है उसको ऑन टोज रहना चाहिए। तमाम मिनिस्टर से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी लग रही है वो फील्ड में नजर आने चाहिए। तमाम आरपीओज, डीपीओज, कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, आपको सबको फील्ड में होना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप ऑफिस में बैठे होंगे तो नीचे कोई फील्ड में नहीं होगा। इसलिए आपको फील्ड में होना चाहिए, खुद हर चीज को मॉनिटर करना चाहिए। सुथरा पंजाब की टीम्स को तमाम रूट्स की सफाई, उनके ऊपर खुशबू का छिड़काव, उनकी जो तमाम जो इमाम बारगाहें हैं वहाँ पर खुशबू का छिड़काव, उनकी सफाई, ताकि उनको एक खुशगवार एहसास हो कि हुकूमत ने उनके लिए अरेंजमेंट्स किए और हुकूमत उनकी वेलबींग के लिए बहुत कंसर्न्ड है। हेल्थ सर्विसेज की प्रिपेयर्डनेस मैंने आपको बता दी है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल एसेंशियल सर्विसेज वो भी मैंने आपको बता दी है। कम्युनिकेशन के अरेंजमेंट्स, सेफ्टी मेजर्स, और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी शुड नॉट वेट फॉर एनी डिजास्टर टू हैपन। प्रोएक्टिव अप्रोच जो है, जो मैं हर मीटिंग में कहती हूँ कि जो प्रोएक्टिव अप्रोच है वो हमें बहुत सारी
جو بعد میں حادثات ہے اس سے بچا لیتی ہے. تو آج سے آپ لوگوں کو فیلڈ میں نظر آنا چاہیے, اپنی موک ایکسرسائزز کریں, موک پریکٹسز کریں, سب کو ایس او پیز پتہ ہونے چاہیے, کمیونیکیٹ کریں اپنی فیلڈ فارمیشنز کے ساتھ تاکہ یہ بات میٹنگز تک نہ رہ جائے, آگے بھی پہنچے. آپ نے اچھا کام کیا ہے عید پہ بھی, اور میں امید کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ یہ محرم جو ہے وہ بھی بہت خیر و عافیت سے گزرے اور ہم لوگوں کی سہولت کا باعث بن سکیں. تو ایک دفعہ آپ سب کو بہت بہت شاباش, ونس اگین تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. وزیر اعظم پنجاب مریم نواز اس وقت محرم الحرام کی سیکیورٹی سے متعلق خصوصی